بات پر اذان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آئی مس یو ٹو میری جان، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تو پھر آپ کیوں نہیں آ جاتے پاکستان ہمارے پاس؟ ہیرا جلدی سے بولی۔ نہیں آ سکتا میری جان، یہاں بہت کام ہے، اذان اسے پیار سے بہلاتے ہوئے بولا۔ آخر 1 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد جا کر وہ مانی۔ اب آپ سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ گڈ نائٹ میری جان، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اذان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ اپنا بھاری ہوتا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ سوری میری جان، میرا بھی بہت دل کرتا ہے آپ سب کے پاس آنے کو، لیکن میں اپنی جان سے پیاری عزیز ہستی کو دی ہوئی قسم نہیں توڑ سکتا، وہ تکلیف سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، اور فون پر اچھالتا وہ الماری سے اپنا آرام دہ ایڈریس لے کر واش روم میں گھس گیا۔ آفس سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا فیکٹری چلا گیا۔ کئی گھنٹے وہاں گزار کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا تو اسے یاد آیا کہ صبح ابا نے اسے ہیرا کو کال کرنے کو بولا تھا۔ ہیرا کی ناراضگی سوچ کر اس نے ہیرا کو نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریش تھا، وضو کر کے واش روم سے نکلا اور عصر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے سے دیر تک سونے سے لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کالج سے واپس آ کر فریش ہو کر اس نے ظہر کی نماز ادا کی اور سو گئی۔ لیزے میری جان، ذوحان اس کے پاس بیٹھا کب سے اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ ہاں بھائی، آپ یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر اٹھتے ہوئے بولی۔ جی میری جان، میں یہاں، میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ مشال سے تمہارا پوچھا تو اس نے کہا تم سو رہی ہو، لیکن تم تو پہلے کبھی اس ٹائم نہیں سوئی، تو بس تمہیں دیکھنے آ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹی گڑیا کی؟ ذوحان فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرا دی۔ ہاں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی تو نماز پڑھ کے لیٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی۔ علیزہ ذوحان کے سینے پر سر رکھ کر مسکرا کر بولی، ٹھیک میری جان، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ اب تم جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، میں بھی ذرا فریش ہو لوں۔ ذوحان اس کے بالوں پر لپ رکھتے ہوئے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی فریش ہو کر واش روم گھس گئی۔ ذوحان ابھی کمرے میں آیا ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے فون نکال کر نمبر دے کر اس کے قدم خود بخود بالکنی کی جانب بڑھ گئے۔ السلام علیکم، ذوحان نے مدد انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ دوسرے سے پوچھا گیا۔ جی ٹھیک، مختصر سے جواب دیا گیا۔ لیزے کیسی ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی، لیکن اب وہ ہر وقت گمسم سی رہنے لگی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کے لیے بہت ڈر لگتا ہے، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ ذوحان تکلیف سے بولا، فکر مت کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے تسلی پر جواب دیا گیا، فکر مت کرو، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ذوحان لمبی سانس خارج کرتا ہوا بولا، پھر کچھ ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا گیا۔ ذوحان واپس کمرے میں آیا تو مشال الماری سے اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ انہی کا فون تھا۔ مشی اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس علیزہ کا پوچھ رہی تھی۔ ذوحان کہتے ہی اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ مشی بھی سر جھٹک کر نیچے کی جانب چل دی۔ کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ شاہ سمیت سب کھانے کے وقت مطابق ڈائننگ ٹیبل موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ارتضیٰ شاہ ذوحان کو لیے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی غازی کا نہ بند ہونے والا ریڈیو چالو ہو چکا تھا۔ ہائے بیجے، اتنی پکی ہو گئی ہو، کیوں لگ رہی ہو؟ غازی اسے چھیڑتا ہوا بولا۔ غازی بھائی، میرا نام علیزہ ہے، لیزے اس کو دیکھ کر چھپا چھپا کر بولی۔ علیزہ غازی کو اپنا نام کے ہاتھ پاؤں توڑتے دیکھ کر بولی، پتہ ہے تمہارا نام پیزے ہے، غازی ایک ادا سے بولا۔ مشی اور دانیال نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی، وہ اٹھتے ہوئے بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہے، یہ اتنی جلدی کیسے مان گئی؟ غازی حیرانگی سے بولا۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں برف والے جگ کا پانی تھا۔ علیزہ نے پیچھے سے آ کر پورے کا پورا جگ اس پر انڈیل دیا۔ غازی اس اچانک افتتاح پر بوکھلا کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ آئندہ یاد رکھیے گا ارطغرل غازی، میرا نام پیزا نہیں علیزہ شاہ ہے۔ علیزہ کہتے ہی تان فن کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی مشی اور دانیال کا کہکا چھوٹا۔ غازی بھی ان کو ہنستا دیکھ کپڑے بدلنے کی غرض سے منہ بناتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانب بڑھ گیا۔ علیزہ نے کمرے میں آ کر وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑکی میں کھڑی آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھتی رہی۔ اب بھی وہ مگن سی چاند کو دیکھ رہی تھی جب اس کے اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مشال کافی کپ تھامے کھڑی تھی۔ مشی بھابھی، آپ کب آئی ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، علیزہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔
जब तुम मगन सी चांद मामू को घूरने में मसरूफ थी। मिशी उसी को वक़्त देकर बोली तो मुस्कुरा दी। क्या हुआ मेरी जान, क्या सोच रही हो? मिशी उसका चेहरा हाथ के प्याले में बड़े प्यार से बोली, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही देख रही थी। आप बताओ, हैरी से आई हैं आप? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही काफ़ी लाई थी, जुहान और दानियाल के लिए काफ़ी बनाई थी, तो सोचा तुम्हें भी दे आऊँ। मिशी इसकी तरफ देखकर बोली, शुक्रिया मेरी भाभी। अलीज़ा इसके गाल चटाचट चूमते हुए बोली, पागल, मैं अब चलती हूँ, जुहान मेरा वेट कर रहे होंगे, गुड नाइट। मिशी उसका हाथ माथा चूमकर कमरे से निकल गई। उसके जाते ही अलीज़ा बेड पर बैठी मिशाल की लाई हुई काफ़ी पीने लगी। अगले दिन अरतज़ा शाह जुहान के साथ ऑफिस में बैठे कुछ काम डिस्कस कर रहे थे जब कोई दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अरतज़ा शाह समेत जुहान की नजरें भी दरवाजे की जानिब उठी। सामने खड़े शख्स को देखकर जुहान का हलक तक कड़वा हो गया। जुहान के इस पर अरतज़ा शाह काफ़ी खुशी दिखाई दे रहे थे। अरे साहिल बेटा, तुम यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरतज़ा शाह अपनी जगह से खड़े होकर काफ़ी गर्मजोश से मिले। अंकल, मैंने सोचा आप तो मिलने आते नहीं तो मैं ही मिल लूँ, दीदार का शरफ बख्श आए आपको। साहिल ने देखता और मुस्कुराकर बोला। अरतज़ा शाह उसकी बात में हंस दिए। उनसे मिलकर साहिल जुहान की तरफ मुड़ा। हाय जुहान, कैसे हो? वो उसके साथ मुसाफा करते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोला। जो जुहान ने एक नज़र देकर थाम लिया। और घर पर सब कैसे हैं? अलीज़ा कैसी है? साहिल चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। अलीज़ा के मुतल्लिक पूछने लगा। जुहान को साहिल का अलीज़ा के बारे में पूछना सख्त नागवारा गुजरा। जब तक अलीज़ा के भाई जिंदा हैं उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ज़मीन न गाड़ दे हमको उसको, जुहान उसके देखकर बोला। एक नज़र उसे देखे ऑफिस से निकल गया। साहिल, तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पापा कैसे हैं? अंकल ठीक है सब, साहिल मुस्कुरा कर बोला। ओके तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं अंकल शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस चलता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है, साहिल मुस्कुरा कर कहता हुआ अरतज़ा शाह से मुसाफा करते वक्त बाहर निकल गया। कुछ ही देर में पहले फ़ोन की घंटी की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने साइड टेबल से फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। बेड से उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में वो वज़ू करके वॉशरूम से निकला और फजर की नमाज अदा की। अपने ट्रैकिंग सूट पहने जिम की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे मुसलसल जिम करने के बाद कमरे में वापस आया। चेंज करने के घर से वॉशरूम की जाने बढ़ने ही लगा था जब उसका फ़ोन बजा। आगे बढ़कर उसने बेड के साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो उसामा की कॉल थी। अजान मुस्कुराता फ़ोन यस किए बेड पर बैठ गया। हेलो, हाय बॉडी, कैसे हो? उसामा की खुशगवार कुन आवाज़ आई। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? अजान मुस्कुरा कर बोला। कुछ खास नहीं, हसन के बच्चों को कॉल की थी तो जनाब अपने महबूबा के पीछे भाग रहे थे। उसामा मुंह बनाता हुआ बोला। तो वो पुलिस वाला है, अपने महबूबा के पीछे ही भागेगा ना कि तुम्हारे पीछे? अजान इसकी महबूबा वाली बात पर हंसते हुए बोला। अच्छा ये सब छोड़ो तो तुम बता, शाम को तुम आ रहे हो फंक्शन पर? उसामा मुस्कुरा कर बोला। मुंतज़िर जवाब दिया। ओके फिर मिलते हैं, मैं शाम को फंक्शन में आऊँगा, ओके बाय। अजान, उसामा और हसन तीनों ही बचपन के दोस्त थे। तीनों एक दूसरे की जान है। एक को चोट लगती तो दूसरा परेशान हो जाता, दूसरे को लगती तो तीसरा परेशान हो जाता। स्कूल, कॉलेज, यूनी, हर जगह इन तीनों की दोस्त मिसाली थी। यूनी के बाद अजान लंदन चला गया और कभी वापस नहीं आया, लेकिन इनकी दोस्ती में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। अजान के जाने के बाद उसामा भी बिजनेस के सिलसिले में लंदन चला गया। वो कभी कभार आता था पाकिस्तान, अजान को भी साथ चलने को बोलता लेकिन हर बार टाल देता। हसन पाकिस्तान में ही था और माशाल्लाह से ASP के ओहदे पर फाइज था। उसामा के फ़ोन लगते ही सर झटक कर वो भी वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में फ्रेश होकर इसने नीचे आकर नाश्ता किया और वापस अपने कमरे में आकर लैपटॉप खोले ऑफिस का काम करने लगा। आज अलीज़ा को छुट्टी थी इसलिए वो नाश्ते के बाद लान में आकर पौधों को पानी देने लगी। अलीज़ा को पौधों से बहुत लगाव था, खासकर गुलाब के फूलों की तो दीवानी थी। उसे लॉन में आए हुए काफ़ी वक्त बीत गया। पीछे दोबारा अलीज़ा को अंदर ना आता देख लॉन में आई जहाँ वो हर काम से मगन से पौधों की कटाई करने में मसरूफ थी। अलीज़ा, काफ़ी देर हो गई है तुम्हें बाहर आए हुए, धूप भी काफ़ी है, चलो अंदर। मिशी उसे देख प्यार से बोली। जी भाभी आप चले, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अलीज़ा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली। मिशी भी सर नहलाती हुई अंदर की जानिब चली गई। कुछ ही देर बाद अलीज़ा भी सीधा किचन में ही आ गई जहाँ मिशी खड़ी कॉफ़ी बना रही थी। भाभी लाए मैं बताती हूँ। नहीं मेरी जान, बस बन रही है, मिशी उसकी तरफ देकर बोली। हाँ भाई, दानी भी नहीं आए अभी तक, अलीज़ा मिशी के हाथ से अपना मग लेते हुए बोली। नहीं आज तीनों ही कह रहे थे हम लेट आएंगे। मिशी
मुश्किल मुस्कुराहट दबाते हुए बोली। उसी इतना ही बोली और अपनी काफ़ी ख़त्म करने लगी जो कुछ देर पहले मिशी ने उसे दी थी। भाभी मैं ज़रा नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। ठीक है, मैं भी तब तक सच्ची के साथ शाम के खाने की तैयारी कर लूँ। जी भाभी, कहते साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी मिशी के फ़ोन पर रूहान की कॉल आई। हाँ हेलो रूहान जी, वो आप तीनों का ही पूछ रही थी। जी मैंने कह दिया है कि आज आप लेट आएंगे। मिशी हल्की आवाज़ में मुस्कुराहट दबाते हुए बोल रही थी। जी ठीक है, मिशी ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। ब्लैक कलर की करोला एक बहुत ही शानदार होटल के सामने आ रुकी। गार्ड ने आगे बढ़कर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तभी अजान जोहेब हमदानी अपनी पुरवकार शख्सियत के साथ गाड़ी से बाहर निकला। आसपास मौजूदा कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें खींच रहे थे। वो इन सब बेनियाज सिक्योरिटी गार्ड के घेरे में रेड कार्पेट पर चलता हुआ होटल के अंदर दाखिल हुए। पूल साइड की जानिब बढ़ गया जहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर तरफ लाइटिंग की हुई थी। लोगों के बैठने के लिए हर तरफ कुर्सियां मेज लगाए गए थे। साथ ही सामने एक खूबसूरत छोटा सा स्टेज बनाया गया था और एक नजर सबको देखता कदम कदम चलता वो आगे बढ़ गया। लड़कियां तो उसकी दीवाना वार उसका हुस्न देवता को आंखें फाड़े देख रही थी, जिसकी गहरी नीली आंखें और उन पर छाया सख्तपन उसे और दिलकश बनाता था। जब भी एक लड़की बेहूदा लिबास पहने उसके पास से आकर रुकी। हाय हैंडसम, लड़की पे बाकी से उसके गले में बाहें डाले बोली। अजान ने एक कहर बड़ी नजर उस पर डाली। उसकी लाल अंगार आंखें देखकर लड़की जल्दी से डर के मारे पीछे हुई। अजान सर झटकता हुआ उसामा की जानिब बढ़ गया। कैसे हो बड़ी? उसामा उसे बगलीर होते हुए मुस्कुराकर बोला। मैं बिल्कुल ठीक, तू सुना, तू कब आया? अजान मुस्कुराता हुआ बोला। अजान की मुस्कुराहट पर वहाँ मौजूद कई लड़कियों ने अपना दिल हारा। सब लोग इश्तियाक से उसे हसीन खूबसूरत जवान मर्द को देख रहे थे कि तभी किसी की आवाज़ उन सब की समातों से टकराई। सब लोग स्टेज की तरफ मतवज्जा हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यह तकरीब हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद हुई है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम अनाउंस किया जाता है। मिस्टर सुलेमान एक नज़र सबको देखते हुए मुस्कुरा कर बोल रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी ये अवार्ड लंदन के सबसे मशहूर बिजनेसमैन अजान जोहेब हमदानी को दिया जाता है। मिस्टर सुलेमान की बात तो सबने जोरों शोरों से तालियां बजाई। मिस्टर हमदानी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर सुलेमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर माइक में बोले तो अपनी जगह से उठता हुआ अपनी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया। मिस्टर सुलेमान मुसाफा करते हुए बोले और अवार्ड्स अजान की तरफ जाने पर दिया, जिससे उसने शुक्रिया करके थाम लिया। मिस्टर हमदानी प्लीज, दो लफ्ज़। मिस्टर सुलेमान मुस्कुराकर बोले तो उसने सर हिलाकर माइक पकड़ लिया। चेहरे पर हनूर संजीदगी बरकरार थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हर साल की तरह इस साल भी इस अवार्ड के लिए चुना। बेशक मेहनत से कामयाब इंसान को मिलती है, जो इंसान को फर्ज से अर्श तक ले जाती है। वफादारी से मेहनत करने वाले को ऊपर वाला ज़रूर नवाजता है। इतना कह के वो माइक पकड़ाए स्टेज से उतर गया। सब ने बारी बारी उसे मुबारकबाद पेश की। वो अभी उसामा के साथ खड़ा बातों में मसरूफ था। मुबारक हो हैंडसम। जब मिस्टर वहाब मुस्कुराकर उसे मुबारकबाद पेश करते हुए बोले शुक्रिया मिस्टर वहाब। अजान उनसे मुसाफा करते हुए हनूर से दीदी से बोला। उनके साथ उनकी बेटी वानिया वहाब भी थी, जिसने ना होने के बराबर लिबास पहना हुआ था। चेहरे पर इंतहाई दर्जे का मेकअप तो थोपे अजान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पार्टी में मौजूद सब मर्द उसे होश बड़ी नज़रों से देख रहे थे। अजान ने उस पर एक नज़र भी डालना गवारा नहीं किया, जिससे वानिया दिल ही दिल में जलन खुलकर रह गई कि तभी अजान का फोन रिंग हुआ और माजर करता हुआ वहाँ से निकल गया। रात का न जाने कौन सा पहर, जब उसे नींद में ही कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। अलीज़े ने कसमसाकर आंखें खोली और एक नज़र नींद में डूबी आंखें पूरे कमरे में दोहराई कि तभी खिड़की के पास काले कपड़े पहने कोई होलिया से नजर आया। वो साफ नज़रों से उसे देख रही थी। चेहरे पर जगह जगह खून लगा हुआ था। वो कदम कदम चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अलीज़े फटी फटी आंखों से उसे अपनी तरफ देखता। कौन है तुम? अलीज़े पीछे को खिसकते हुए अटक अटक कर बोली। डर के मारे आंखें भीगने लगी। मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने आया हूँ मेरी जान। वो होलिया उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अलीज़े रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े बोल रही थी। जैसे ही उसका हाथ थामने लगा अलीज़े ने जोर से चीख मारी। अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हुई और पूरा कमरा रोशनियों से नहा गया। सरप्राइज! लिटिल सिस्टर गाजी अपना मास्क उतारता हुआ बोला कि तभी सब दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुए। हैप्पी बर्थडे अलीज़े, सब उसके कमरे में दाखिल होते हुए एक साथ बोले। अलीज़े तो कितनी ही देर आंखें फाड़े सब समझने की कोशिश करती रही।
لیکن سب سمجھ میں آیا تو گھنٹوں میں سر دیے زور زور سے رونے لگ گئی۔ اسے روتا دیکھ تینوں بھائیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تینوں جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ مجھے نہیں بات کرنی آپ سب لوگوں سے، وہ گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر سو سو کرتے ہوئے بولی۔ سوری میری جان، ہمارا تمہیں ہرٹ کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا اور میں ان کے پلان میں بالکل بھی شامل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے تمہاری قسم دی کہہ کر زبردستی اس پلان میں شامل کیا۔ جوہان اپنا کان پکڑتا ہوا بولا۔ وہ ایسے ہی اپنی لاڈلی کی وجہ سے بچہ بن جاتا تھا۔ غازی یہ پلان تمہارا تھا، اب تم تب تک اٹھک بیٹھک کرو گے جب تک علیزہ منہ نہیں کرتی، یہ تمہاری سزا ہے۔ جوہان اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں کرنے والا، غازی نے صاف انکار کر دیا۔